अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक अमरीकी सदर डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका ताल्लुक बारक ओबामा। थैंक यू और हमारे साथ गाहे गाहे शरीक गुफ्तगू होंगे रुखसत होते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अब देखो जरा की होई है, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰੇਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਤੇ ਲਾਤਾਂ ਨੇ। ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ वाले जो हो गए आप ही गल्लां कर लवो। बोला तो पता चला कि ट्रंप है, वरना पता नहीं चल रहा कौन है। क्यों नहीं पता चल रहा? आपने आते ही मुझसे कान में पूछा है ये आलूओं की आड़ती को क्यों बुलाया? अब देखो ना जरा मेरे नाल की होण डई आ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੂ ਧੂ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਲਗਾ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ। ਆ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਈ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਬਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਚਾਚਿਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਹੱਟੀ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਮਲੇ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਕਲਮਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਜਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ ਹੀ ਜਾ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋੜਾ ਕੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ। तो तुमने बाल कटाने क्यों है? तुम अब कौन सा सदर हो है? लंबे बाल करो, तमाले डालो, डम 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 डम। ट्रंप ये क्या हो रहा है आज? आप ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮਿਸਟਰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਦਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਰੰਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਗੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਚ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਾ ਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲ ਕਰ, ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖ, ਆਫਤਾਬ ਸ਼ੇਰ ਪਾਉ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। आपने भी तो बिल्कुल अपना गेटअप चेंज ही कर लिया है। 3 पीस उतार दी है, स्वेटर लूज सा पहना हुआ है, मफलर पहना हुआ है। गौर से देखे तो पता चलता है आप वरना लगता है स्वीडन की बेवा बैठी हुई है। स्वीडन की बेवा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਆ? ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ 3 ਪੀਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ? ਉਹ ਧੋਬੀ ਚਵਲ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਵਾਂ ਦਾ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਤ ਜਨੈਦ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ 3 ਪੀਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਢਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਥਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਪਜਾਮਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲੋਂ। ਇਹ ਲੁੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਲੈਦ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੱਦੇ ਆ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ। चावा शावा से मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो मजबूरन बुलाया है। प्रोटोकॉल यही बनता है कि अभी तक तो सदर आप ही हैं, लेकिन असल में तो अब दूल्हा तो ये बैठे हुए हैं। देखे ना, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? और क्यों रोने रोई जा रहे हैं लो कास्ट दे विलन? ਆ ਵੇਖੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵਿਲਣ। फिल्में जुगते हो रही हैं, आपने फिल्मों में काम भी किया हुआ है। और भाई ना तू 3 पीस च सदर लगना सा, ना पजामे ही सदर लगना है। इधर देख भाईजान, पर्सनालिटी देख, लगदा सदर के नहीं? ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਮਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। वेलकम वेलकम। ਕੱਟਾ ਸਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ, ਜਦੋਂ 6 ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 12 ਨਾਨ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਤ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ ਵੀ ਪਕਵਾਈ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ कम ही कम सिरी जरूर पवाई है। वाशिंगटन में जगह जगह आपने ट्रंप दस्तरखान खोले हुए। नान सिरी दाल चौल, यार तू सदर सांगे तंदूर वाला था। पुत आ चलन दिया ना कैमरा पुत मैनू मैं कट करे पुत पुत मैनू कोई ओ चल मगरों मैं सादा सदर है
ਕੰਜੀਆ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾਣਾ ਆ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਕੌਣ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਸਦਰ ਵੇਖ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਚੂਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ओबामा उठ के आदि टोन ते 2 ला ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਤੇ ਧੌਣ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆ ਬਤਕਿਆ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੋ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੁੱਛ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ एक बात सारे जहन में रखें कि ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट, वो अभी भी सदर है। देखिए जाते जाते पिछले दिनों उन्होंने काम दिखाने लगे थे, वो तो इनके दिल में कोई रहम आ गया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का नाम निकाल दिया इन्होंने, कई मुल्कों का नाम इन्होंने मजहबी रवादारी के हवाले से खतरनाक लिस्ट में डाल दिया। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਜਲੀਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ वो खुद ही आगे बैठ गए, वरना देखिए प्रोटोकॉल तो यही है कि इधर जो बाइडेन बैठे साथ आप तशरीफ रखें। ਜਬੈਡਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜਬੈਡਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਬੈਡਨ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾ ਚੜੇ अच्छा एक मिनट जरा सबर, आप जरा प्लीज सामने तशरीफ इधर रखें। आओ, मेरा आप पोते उधर बैठे ना, आप उधर चले जाएं प्लीज। बैठे रहो इधर मैं ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਮੈਨੂੰ नहीं उठूंगा यहाँ से। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਗਾਰਡ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ओए होए, ये दिन भी चश्मे फलक ने देखना था। ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਟੂਲ ਹੈ ਸਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਤੇ ਆਏ ਜਾਣਾ और ओए ओए ओए, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਹੀ ਭਾਏ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟੋ ਕੈਮਰੇ ਟਰੰਪੂ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਟਗੇ ਟੋਕਰੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ देखो जरा सदर लग नहीं रहा, लगता बाबा ECG कराना है। मैंने तो लगता शक्कर कोला बेचने वाला बाबा है ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ ਚਾਚਾ ਸਦਾਰਤ 4 ਦਿਨ ਕਰ ਲੈ ਫੇਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ whatever मैं उछल के तेरे दिल ते लत मारनी ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਉਛਲ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ सिक्योरिटी वाले को लत चुकी नहीं जाती ते आ भी ना मारा ਚੱਲ ਲੱਲਾ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਆਪ ਮਾਰ ਲੈ ਲੱਤ ਫਿਰ ਜੂ ਸਿਰ ਭਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਪੜਵਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਜਾ ਘਰ ਜਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਏ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁੱਟ ਚ ਸੂਈਆਂ ਪਵਾਈਆਂ तो 8 साल सदर रहा हूं मैं, मुझे तजर्बा हो गया। 8 ਸਾਲ ਸਦਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 34 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਖਾਈ तो तू तो बोलन जो करी, तू तो 4 साल बाद तेन चौके मारे अगले ने। ओ बस करें बस करें। अच्छा मिस्टर ट्रंप, ये बताएं कि आपकी साहबजादी इवांका ट्रंप ने भी 2022 के सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। उनको आप आइंदा का अमेरिकी सदर देखते हैं? चाल कितनी ग्रेसफुल हो गई है। ਪੁੱਤ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਉਹ ਸਦਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ मुझे लगता है वो सियासत में आ गई तो उसने आपकी बड़ी मशहूरी कर दी। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੁੜੀ ਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਆਸੀਆਤ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਹਿਰ ਆ ਉਹ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਦਰ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ किधर गाल पकड़ो इसको। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਠ ਪੋ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਪੋ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਉੱਠ ਪੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, तो मैं नहीं उठना तू बजा। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ मिस्टर ट्रंप बहुत बुरे लग रहे हैं। ਚਲੋ ਬੁਰਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਦਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ बिल्कुल नहीं लग रहा है, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਦਰ बिल्कुल नहीं लग रहा है। ਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 100%। Why not? ये भी लगते हैं, वो भी लगते हैं। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई अप्रिशिएट यू ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ
ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਪਲਾਈਏ ਕਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਲਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। तो फिर आप अंजुमन ताजरान के सदर लग जाए ना, अमरीकी सदर पे ना इंसिस्ट करें। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ जा। अच्छा आप शोर नाम चुप करके बैठो, हमने अमेरिका के लिए कोई प्लानिंग बनानी है। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੂੰ, ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਆ। और दे क्यों, और तो जरूर क्यों देना सी उन्हें। आइंदा टाइम तेनू भी देना पैना लिखी ओहो, हम अब सदर हैं, हमें इस जैसे बंदे के मुंह नहीं लगना चाहिए। ਰਾਮ ਯਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਰ ਲੈ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ट्रंपू ही थी, तो जो चोर दी सजा हो मेरी सजा। ट्रंप की तस्वीरें ट्रकों के पीछे लगी होंगी, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पेशावर का जो किस्सा खानी बाजार है, उसकी वजह शोहरत या उसका जो नाम है वो इसी वजह से है ना, कि जब फातहीन उधर से आया करते थे, लश्कर के लश्कर आया करते थे, तो इस बाजार में बैठ के बाज जो प्रोफेशनल दास्तान गो थे, किस्सा गो से हुआ करते थे, उनसे किस्से और दास्तानें सुना करते थे। यार जुनैद, पुराने वक्तों में ये एंटरटेनमेंट में एक बड़ी प्यारी चीज होती थी, दास्तान गोई। हाँ, किस्सा गोई है दास्तान। हाँ जी, किस्से सुनाया करते थे, दास्तानें सुनाया करते थे और गांव के गांव बैठ के सुना करते थे। हाँ जी। और वो किस्सा सुनाने वाले या दास्तान गोई करने वाले जो लोग थे, वो बड़े बड़े कमाल आर्टिस्ट मशहूर होते थे वो बड़े। जी बिल्कुल अच्छा, तुमने कहा ना एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही मकसद नहीं होता था दास्तान गोई का, तालीम और तरबियत भी एक बहुत बुनियादी मकसद हुआ। नॉलेज में इजाफा भी होता था। हाँ, नॉलेज में इजाफा, तालीम और तरबियत करना, मतलब बच्चों की खास और बड़ी उम्र में भी ये बताया जाता था। यार ये तो हमारे बचपन तक फिल्म जो है या ड्रामा, रेडियो, टीवी, हर चीज जो है वो साथ एजुकेशन भी मुहैया करती है। बिल्कुल। ये निरी इंटरटेनमेंट जो है, और बल्कि इंटरटेनमेंट भी नहीं बल्कि उसमें मिक्स बेहयाई हो गई है। उसमें कोई मकसद कभी नहीं बयान किया जाता, या कोई लोगों को गाइड नहीं किया जाता, एजुकेट नहीं किया जाता। हाँ जी। वरना ये सारी चीजें जो हैं परफॉर्मिंग आर्ट से मुंसलिक, वो बेशक वॉइस की गेम हो या एक्सप्रेशन की गेम हो या बॉडी लैंग्वेज की गेम हो, वो सारियों में कुछ ना कुछ सबक होता है। अब देखा जाए तो ये ड्रामे की एक इब्तदाई शक्ल ही है ना, दास्तान गोई। उसको अगर आप फिजिकली परफॉर्म करके दिखाते हैं तो वो ड्रामा बन जाता है। और अगर आप जुबानी, लेकिन जब जुबानी सुनाया करते थे पुराने वक्तों में दास्तान गो या किस्सा गो, तो साथ एक्सप्रेशन उनके बड़े मजबूत हुआ करते बड़े थे। कमाल। सर हमारे राजस्थान में तो उसे सांग भी कहा जाता था। सांग, अच्छा, हमारे यहाँ वैसे यहाँ पे सेंट्रल पंजाब में सांग कहा जाता है, नकल उतारने को सांग कहा जाता है। इसने पहले ने कहा है हमारे राजस्थान आपका। हाँ, ये हरियाणवी है ना। जी जी, मगर ये गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। अच्छा, ये जो किस्सा गोई है ना जी, ये मैंने भी खुद सुनी हुई है। ये ओपन एयर थिएटर में मैंने 1-2 ऐसे शोज देखे हुए हैं जिसमें ये किस्सा गोई हुई और किस्सा सुनाया गया। जी जी। तो वो को बुजुर्ग थे, वो उन्होंने सारा ये एक्ट किया था। वैसे ये जो है नसीरुद्दीन शाह इंडिया के वो जब भी यहाँ आते हैं वो इसी तरह स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि वो टीम के साथ नहीं आते और लोग उनको वैसे ही देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। तो वो फिर खुद या अपनी बेगम के साथ आते हैं, तो आके वो बाकायदा कोई ना कोई स्क्रिप्ट सुना देते हैं, उसी तरह जैसे किस्सा कोई हुआ करता है। तुम ये सुन के हैरान हो गए कि 20 मार्च आने वाला है। जी जी। 20 मार्च को दास्तान गोई या स्टोरी टेलिंग का वर्ल्ड डे भी मनाया जा रहा है। अरे वाह। हाँ, मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। अच्छा। और बाज मुल्कों में तो बहुत एहतमाम के साथ मनाया जाता है, खास तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। कनाडा के बाज स्कूलों में आज भी बच्चों में दास्तान गोई के मुकाबले करवाए जाते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इस फन को जिंदा रखा जा सके। क्योंकि ये फन जो है ये एंटरटेनमेंट के लिए भी था, तरबियत के लिए भी था, यानी माशरा साजी के लिए भी हुआ करता था, कौम बनती थी इससे। और अगर जैसे हमारे यहाँ मीडिया पे बाज़ दफ़ा तनकीद होती है कि जी गलत रास्ते पे से, इसी तरह जब कोई इसमें कजरवी आ जाती थी ना,
दास्तान गोई में, किस्सा गोई में, तो जो माशरे के बुजुर्ग हुआ करते थे वो फिर उस पर पाबंदी लगा देते थे। उसको कहते थे कि ये इससे बिगाड़ पैदा हो रहा है, इससे इस्लाह का पहलू नहीं निकलता। मतलब उसमें रोमांस और मोहब्बत भी बहुत जबरदस्त हुआ करती थी। आज भी आप झील सैफुल मुल्क जाएं तो आपको पुराने दौर के दास्तान गो या किस्सा गो मिलते हैं जो आपको वो झील सैफुल मुल्क की पूरी कहानी सुनाते हैं। अच्छा उसमें अच्छा, इससे पहले कि हम ये किस्सा गोई में इधर उधर को निकल जाएं, जी जी, किस्सा गोई के हवाले से एक और बहुत बड़ा नाम जो हमारे पाकिस्तान का हुआ है जी, वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब। ज़िया मोहिउद्दीन साहब भी जब अकेले खड़े होके कोई किस्सा या कोई स्टोरी बयान करते हैं तो कमाल कर देते हैं। ऐसे अच्छे एक्सप्रेशन और इतना अच्छा लहजा जो है वो पाकिस्तान में कम से कम किसी और का नहीं। हम बहुत अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, ये जैसे मैंने कहा ना कि तालीम और तरबियत के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ जी, सेहत के लिए भी, तंदुरुस्ती के लिए भी, बल्कि ये बात बहुत मशहूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया को जब उनकी बहुत तबीयत नासाज हो गई तो अमीर खुसरो उन तक पहुंचे और उनको उन्होंने बाकायदा उनकी तबीयत को बहलाने के लिए 3 किस्से सुनाए। किस्सा चहार दरवेश, बागो बहार और अलफ लैला। तो जब ये तीसरा किस्सा, ये दास्तान खत्म हुई तो निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने फिर ये फरमाया था कि अगर कोई बंदा ये 3 किस्से सुन ले, दास्तानें सुन ले, तो वो सेहतयाब हो जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आपकी बातों से मुझे याद आ गया, वे मैं किस्से वेच दी बन गई किस्सा वे, तेरा ना हुण बन गया मेरे ना दा हिस्सा वे, तू परले पार गयो मैं डूब विच अच्छा, ये तो किस्सा बेचने वाला गाना है ना। हम बात कर रहे हैं किस्सा गोई की। अच्छा, किस्सा बेचने वाले लोग भी हमने बहुत देखे हुए, खास तौर पे ये बसों में वो किस्से बेचते थे, जंतरियां जैसे बेचते हुए भी हमने लोगों को देखा हुआ है, किस्से बेचते हुए भी देखा हुआ है। वो छोटी सी इतनी किताबें सी किताबचे से छपे हुए होते थे, वो बेचते थे और लोग वो खरीदते थे। कैसे कैसे न थे शहर में किस्सा गो, कभी बोलते थे अब नहीं बोलते। ये पेशावर का जो किस्सा खानी बाजार है उसकी वजह शोहरत या उसका जो नाम है वो इसी वजह से है ना। कि जब फातहीन उधर से आया करते थे, लश्कर के लश्कर आया करते थे, तो इस बाजार में बैठ के वो ये बाज जो प्रोफेशनल दास्तान गो थे, किस्सा गो से हुआ करते थे, उनसे किस्से और दास्तानें सुना करते थे। उसके बाद फिर ये किस्सा खानी बाजार। अच्छा, एक इसमें बहुत ज़रूरी है एक बात की निशानदेही करना कि हमारे ज़हन में आता है दास्तान गोई से मुराद है शायद कोई झूठी सच्ची बातें। ऐसा नहीं था। दास्तान हम जिन मायनों में बोला जाता है, दास्तान खुद ही घड़ ली, दास्तान बना ली। जाहिर है इसमें बहुत सारा अफसाना भी हुआ करता था, लेकिन बुनियादी मकसद इस्लाह का हुआ करता था एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो बहुत सारे मतलब दास्तानें हैं जो आज भी आप उठा के देख लें, उसमें हकायक भी हैं, तारीख भी है, मिजाज भी है, उसमें सब कुछ है उसमें। अच्छा यार, ये दास्तान से मुझे याद आया कि मेरे बड़े ही प्यारे टीचर हैं स्कूल के, मास्टर बशीर साहब मोहतरम, बड़े प्यारे आदमी हैं। उन्होंने एक दफा मुझे कहा कि यार मुझे बड़ा दुख होता है आपके मीडिया के ऊपर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कोई लफ्ज गलत बोलते हैं। तो कहते हैं कि एक उमर और अमर का जरा फर्क जरूर किसी वक्त अपने शो में बताओ कि एन पेश मीम रे हो तो उमर होता है, और अगर रे के आगे वाओ आ जाए तो फिर एन के ऊपर जबर आ जाती है, वो अमरू नहीं होता, अमर होता। अमर हाँ जी, ये जो दास्तान अमीर हमजा है उसका एक किरदार है अमर अय्यार। वो उमरू अय्यार नहीं है, कहते हैं गलत कहते हैं उमरू अय्यार, वो अमर अय्यार है वो नाम। वो ये अरबी के लफ्ज हैं सारे, इसलिए जब इसको पढ़ा जाता है तो वाओ जो है वो साइलेंट हो जाती है और एन के ऊपर जबर आ जाती है, अमर अय्यार। मैंने कहा जरूर सर मैं बता दूं, असल में मास्टर बशीर साहब जब डंडा मारते थे ना तो मैं यमीन से अद्धा को फुट उछलता था, इसलिए मैंने बता दिया कि कहीं ये ना हो कि फिर मुझे किधर पकड़ ले रास्ते में और कान पकड़ा के तो साइकिल के कैरियर से डंडा निकाल ले। मेरा ख्याल है दास्तान गोई या किस्सा गोई के हवाले से जो मोतबर तरीन नाम हमसे जो रुखसत हुआ 2004 में इशफाक अहमद मरहूम की शक्ल में हमसे चले गए। तो बहुत खूबसूरत और उनको बड़ी दस्तरस थी इस फन पे, इस आर्ट पे। बिल्कुल, और इशफाक साहब जो किस्से सुनाया करते थे उनका वो बड़ा प्यारा शो होता था अपना तलकीन शाह।
ہاں تلقین شاہ، اس میں وہ جو قصہ گوئی کرتے تھے یا مختلف باتیں سنایا کرتے تھے جی اس میں واقعی بڑی تلقین ہوتی تھی، عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بے شمار تلقین موجود ہوتی۔ نام ہی انہوں نے دیکھو کتنا خوبصورت رکھا، تلقین شاہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں کہتا ہوں جی کہ آج تک آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہاں جی ان کے فقرے، ان کے ڈائلاگ، ان کی اصطلاحیں یوز ہوتی ہیں، ہاں جی، استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کے سنائے ہوئے قصوں میں سے مصرے پکڑ کے تو لوگ وہ واٹس ایپ کرتے ہیں یا پوسٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے نا جی، انہوں نے باقاعدہ اپنی قوم کے لیے استاد کا کردار ادا کیا ہے۔ بے شک ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گڑاٹو جلیبی تم کھاتے ہو گڑاٹو جلیبی؟ اس کو بھوک لگی ہو تو یہ ہیٹر والی جلیبی دودھ میں ڈبو کے کھا جاتا ہے۔ جو جو پیالہ منہ نو لائے نا تو پچھو چھوچلا ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فیکے سے۔ پیالہ لگنا ہوں نا، بہت، مجھے تو ہمیشہ پیارا لگتے ہو۔ ابھی چھانا کہتا تھی کہ تم ٹی وی کے آگے بیٹھو گے تو تم میرا سویٹر پہن لو، پھر اس نے مجھے دے دیا اپنا سویٹر، اچھا لگ رہا ہے بڑا، ہے نا؟ بہت جو ملک صاحب ہے نا، ان کے جو بچوں نے سویٹر خریدے ہیں نا نئے، کیا بہت پیارے ہیں۔ اچھا وہ جو خالہ ہے نا انٹی ملکانی جی، انہوں نے تو فاڑ والا کوٹ بھی خرید دیا ہے، وہ جس کے ادھر ادھر بلی لگی ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح کئی فاڑ والا سویٹر جرسی لیا ان کے بڑے بیٹے نے، عامر نے بھی۔ بہت گرم ہے وہ، بہت گرم ہے۔ تمہیں کیسے پتا بہت گرم ہے؟ وہ جب کرکٹ کھیل رہا تھی تو اس نے مجھے پکڑا دیتا جی، کہتا جی ذرا سویٹر پھاڑ پھر ویخے ننو چھکے لگ دے، تو میں نے پکڑیا تو میں نے اس میں بازو ڈالیا نا سویٹر میں، بہت گرم تھی۔ وہ ساڑا پہنتا ہے، میں تو صرف میں نے اس میں بازو ڈالیا تھی۔ یار مگر مجھے جو ٹھنڈ لگ رہی ہے میں کیا کروں؟ یہ پروگرام ختم ہوئے گا تو پھر سویٹر دے دوں گا میں تم کو۔ بار بار احساس تو چودھری نہ بن جاؤ، پنڈ کا چودھری ہے، شلوار میری ہے، بار بار بتا رہے ہیں۔ نہیں ابھی تو یہ تو میرا دوست ہے نا، تو وہ جو ملک صاحب کا پتر ہے نا عمر، میں اس کے سارے کام کر دیتا ہوں، میں اس کی گڈی بھی نویں دو دیتا ہوں، وہ کسی کو گڈی کے نیڑے بھی نہیں آنے دیتا، تو مجھے صرف کہتا ہے پھر چھڑو ہو جاؤ، میں بالٹی پانی کے بڑھ کے دھواں نکڑیا ہوتا ہے پانی میں سے، بڑی سردی ہے، میں پھر اس کے ٹیڑوں کے ساری گڈی کے مٹی اتار دیتا ہوں۔ پھر مجھے کہتا تھی، میں نے کہا ملک جی بڑی ہوئی سردی ہو گئی ہے، تو کہتا تھی فکر نہ کاٹتے نو میں سویٹر کاٹ کے دیا گاڑ ماری میں سے، میں کہا فاڑ والا فاڑ والا فاڑ والا۔ صبر اور قناعت دیکھو تم فیکے کی، زندگی کی تکلیفوں کو بھی کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ بیسیکلی فیکا معصوم آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ورنہ جتنا اس کا بڈ ہے یہ کسی غلط راستے پہ چلتا تو اچھا بلا سٹریٹ کرائم میں اس کا نام ہونا تھا۔ بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ فیکا میرا بھائی ہے، آپ کو سٹریٹ کرائم نظر آ رہی ہے؟ وہ والے جو کراچی ہوتے ہیں، ہاں تکلیف ہے تم کو؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے راستے پہ چل رہے ہو نا، اگر غلط راہ پہ چل پڑتے تو پھر اس بات کا خدشہ تھا۔ اس کو بھی حسب حال میں نہ بٹھاتے، آپ تو فلم کالے چور تو ہٹ ہو ہی گئی ہوئی تھی۔ چلو چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کہ وہ ملک صاحب کا بیٹا عامر تمہیں کہہ رہا تھا کہ تمہیں سویٹر دے گا۔ فاڑ والا نہیں، وہ فاڑ والا نیا لیا اس نے، کہتا تھی کہ ایک میں نے موٹی اون والا رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، تو وہ میں تم کو دوں گا، بس اگلے ہفتے تم ساری گڈیاں دو دینا تو پھر تم کو دے دوں گا۔ تو میں نے کہا تم دے دو، سردی بہت ہے،
तो मैं गाड़ियां तो आके मैं धो ही देता हूँ। कहता नहीं अगले हफ्ते जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा ना, मैंने सारी उनकी मैं गाड़ियां धो देता हूँ। मलक साहब की वड्डी जीप भी, लैंड क्रूजर, उसके पीछे मैं बैठ के गया हूँ मलक साहब के साथ। अच्छा। जो पीछे उसके 2 सीटां होंदियां हैं, वो बंद भी हो जाती हैं, उस पे बैठ के गया था। अब मैं वो साड़ी धो दूंगा ना, तो फिर नवा स्वेटर मोटी ऊन वाला, फिर अगलियां सर्दियां ठीक गुजर जाएंगी। अभी तो मलक साहब के घर में डढ़ाई फ्रूट भी बहुत आया है। अच्छा, हाँ, तो मैंने दिया उन्होंने। मैंने भी दिया थी। अच्छा। इतनी सारी मूंगफली दी थी मुझे। चल वो ये नहीं मैं खाता, उन्होंने दिए नहीं होंगे। वो तो फिर मैं नहीं खाता। महंगे बड़े हैं। मैंने मूंगफली भी लिया के मैंने नन्नी को भी दी थी आजी। अब तो अब्बा कहते हैं अब तो जो चीजें पहले गरीब आदमी ले लेता था ना, वो भी नहीं अब ले जानती है। अभी छान्योड़ों के अब्बे ने जो नवा पाकिस्तान बन रहा है उसमें घर लेने के लिए दरखास्त दी है ना। अच्छा। 2000 रुपया जमा होता है। तो अम्मा अब्बे को कह रही थी कि तुम ही दे दे दरखास्त। अब आंदा 2000 होंदा तो महीना पहले मैं हीटर न ले आंदा। 2000 नहीं है ना अब्बे के पास। अब्बा कहता है कि जे गरीब की गवर्नमेंट ने मदद करनी है तो फिर ये तो देखो कि जेड़े गरीब को 2000 भी नहीं, वो तुहाडा प्लाट अपने सिर च मारे। और फीका तो इतना सीधा है जनाब, ये तो मेरे अब्बू से पूछ रहे थे कि चाचू ये 2000 की किस्तें हो जाएंगी। तो फिर जिसके पास नहीं है 2000 तो फिर किस्तों पे दे दे। उसके लिए तो 2000 भी बहुत बड़ी अमाउंट है ना। हाँ, मेरे अब्बे ने जोड़िया थी पिछले सर्दियों में। अच्छा। हाँ, उस वक्त हमने हीटर लिया थी। उस वक्त अम्मा बड़ी बीमार थी ना, तो वो फिर खराब हो गया थी। अम्मा कहती है कि फिर इतना सस्ता खरीदोगे तो फिर इंज ही होना है ना। हीटर की विच जो जलेबी होती है ना वो सड़ गई थी। ओहो। गड़ाटो जलेबी। तुम खाते हो गड़ाटो जलेबी? इसको भूख लगी हो तो ये हीटर वाली जलेबी दूध में डुबो के खा जाता है। जो तो प्याला मुंह नु लाए ना तो पिछो चोचला ठीक है। जलेबी ये तो मुंह फाड़ लेगी। वो तुम्हारा इतना हमदर्द और दोस्त है, वो कहता है कि मैंने अपना ये कोट फीके को देना है। कौन? ये कहता था गोगा। गग्गे का कोट? जी। गोगा अगर मुझे कोट दे देना तो मैं इसके कनोपी बनवा लूंगा। शादियों के ऊपर कढ़ाई पे दे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जो नए मोटरवे खुले हैं ना, सियालकोट वाला, मुल्तान वाला और कई खुल गए हैं, कराची की तरफ जा रहा है। इधर नई पुलिस की भर्ती नहीं हुई यार, पुलिस चाहिए इस मोटरवे के लिए। अच्छा यार, एक बात जो हमने बार बार पहले भी की है, दोबारा इसलिए करना चाह रहा हूं कि किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ये सियासतें अपनी जगह पे, लड़ाइयां झगड़े भाजनैद अपनी जगह पे, जी। मगर बड़ा ही बाखुदा दुख होता है जब भी कभी मोटरवे पे चढ़ने का मौका मिलता है। मोटरवे जब स्टार्ट हुई थी तो मुझे याद है कि लोगों ने उसके असूलों पे अमल करना शुरू कर दिया था। बाकायदा लाइन वगैरह की और लेन की ख्याल रखा जाता था। जी बिल्कुल। उसके कवानीन को बाकायदा फॉलो किया जाता था।
मसलन सबसे लेफ्ट वाली जो लाइन होती थी वो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, हैवी ट्रांसपोर्ट की थी, लाइन होती थी। और उसी में लोग चल रहे होते थे। और अगर किसी ने टेक ओवर करना है तो वो दरमियान वाली लाइन में टेक ओवर करके तो फिर जाके तो तीसरी लाइन में चला जाता है। जी। और ये जो है लाइट ट्रांसपोर्ट, हाँ जी, छोटी जो ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए दरमियान वाला ट्रैक था। 3 अगर ट्रैक हैं तो दरमियान वाला ट्रैक हल्की जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए था। उन्होंने अगर टेक ओवर करना है तो वो इधर वाली इंतहाई दाएं लाइन जो जिसे हम पहली लाइन कह सकते हैं उसमें से होके तो वो आगे चले जाते, मगर फौरन फिर दरमियान वाली लाइन में चले जाते। अब अक्सर ये देखने में आ रहा है कि जो सबसे दाईं लाइन है, इंतहाई दाईं लाइन, हाँ जी। उसमें कोई जा रहा है तो इस्लामाबाद तक उधर ही जा रहा है या मुल्तान तक उसी लाइन में जा रहा है, पीछे से कोई हारन मार मार के आके के फिर लेफ्ट साइड से ही वो टेक ओवर करके तो जा। तो मानो या ना मानो, उसकी एक बड़ी वजह जो है ना, ये जो किसी लेन चेंज कर लेना और आगे मुसलसल एक लेन में चलते जाना, फिर बगैर इंडिकेटर दिए लेन चेंज कर लेना, उसकी एक बड़ी वजह ये है। आप देख लें ज्यादातर उसमें मोबाइल पे लगे होंगे, वो गर्क होते हैं ख्यालों में, गुफ्तगू में। मगर इसकी बड़ी वजह ये भी है कि पुलिस ही कोई नहीं है मोटरवे। सीधी बात है, पुलिस ने ठीक किया था, पुलिस ने काबू में किया था। हमने बड़े खुद शो किए हुए हैं कि क्या बात है जी, पूरी दुनिया में नंबर 1 हमारी पुलिस आ गई है। तो किधर गई हो नंबर 1 पुलिस? उन्हें बाहर कढ़ो यार, उसका को देखो, उसको को पूछो। आप देखे ना जी, कोई लाइन चेंज करता था इंडिकेटर दे के करता, बिल्कुल सही, बेड़ा गर्क हो गया। आपको पूरे इस्लामाबाद तक कोई रोकता ही नहीं, बेशक आप 160 पे जाएं। बिल्कुल सही। मैंने कई दफा ये खुद चेक किया है, 160 तक आप इस्लामाबाद पहुंच गए, किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं पूछा। एक कदी जगह पे कोई कैमरा लगे या पता नहीं कैमरा ला के तो पर मूंगफली खा रहे होंगे ने, अब कोई भी नहीं रोकता, बिल्कुल रोकना छोड़ दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया मोटरवे का इन लोगों ने। ये गोगा मोटरवे पे स्पीड लिमिट की खिलाफवर्जी करके गए, रास्ते में कैमरा देखा, इसने आगे चला गया, वापस आके पूछता है कैमरे में मेरी तस्वीर कैसी आई है? नहीं जाहिल आदमी। अले जी निके कैमरे से नहीं होती कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नए मोटरवे खुले हैं ना जी, सियालकोट वाला, मुल्तान वाला और कई खुल गए हैं, कराची की तरफ जा रहा है, इधर नई पुलिस की भर्ती नहीं हुई यार। पुलिस चाहिए इस मोटरवे के लिए, खुदा के वास्ते। जो मुवासलात का महकमा है या जिसने भी करना है भर्ती, या दाखिला वालों ने करना है पुलिस भर्ती, वो उसको करो। वो नीरियां तकरीर और एक दूजे नु गाला कड्डी जाते हो, पब्लिक वाला काम भी करो खुदा के वास्ते। कुछ ख्याल करो, बेड़ा गर्क हो गया, बड़ा पैसा लगा हुआ है, खरबों रुपया लगा के ये मोटरवेज बनाई है, और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। उस सहूलत को अब बेड़ा गर्क ना उसका कर, ये ना हो कि वो जो रहमत है वो जहमत बननी शुरू हो, और ये हो गया हुआ है। अब देखें कितना बड़ा वाकया पेश आया था सियालकोट के मोटरवे पे, उसके बावजूद किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। 4 दिन बड़ी हाला हुई, CCPO किसी ने अगे रखे सी, किसी ने मोटरवे दी पुलिस अगे रखी सी, डांगो डांगी होया सी, किसी ने हुकूमत में से कीड़े निकालने शुरू किए हुए, हो रहे की हुआ है, क्या किधर गया वो मीडिया, किधर गए वो लोग, कौन किधर गए वो दानिशवर, उनको को पूछे तो सही कि क्या ये सारा कुछ हो गया जो आपने बात करनी छोड़ दी है, या वैसे तो किसी ने किया कि यार दफा करो, इस गल ना करो। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत बड़ी बात, ये खरबों के बजट की बात, उसको संभाले, उसका कोई ख्याल करे। इतने जो मोटरवेज बने हुए हैं, आपके एक्सीडेंट की रेशो बढ़ गई है, ऊपर से धुंध आ गई है, बहुत सारा ही नाश बज गया। अब तो मोटरवे पे चढ़ना बड़ा खतरनाक है, बिल्कुल सही, बाखुदा धुंध ना भी हो तो मोटरवे पे चढ़ना बड़ा खतरनाक हो गया, क्योंकि पता ही नहीं चलता केड़ी गाड़ी किधर से किधर आ जानी, ची 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 ची, अजीब हौश पौच हो गया सारा काम। इसको संभाले, लोगों को ये चीजें नजर आती निरी तकरीरों से, निरी बातों से, निरी बड़के मारने से लोग कभी भी नहीं यकीन करेंगे। ये ज़हन में रखें, लोगों को कुछ करके दिखाएं, लोगों को सिस्टम अपना ठीक करके दिखाएं, फिर लोग मानेंगे कि आपने कुछ किया। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की छोटी सी बात ये, अगर आप पे कोई मरता है तो कोशिश करें कि उसे जिंदा रखें, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।